You're not taking any mortgage from the bank. You're putting in around 2.85 crores in Indian rupees, and you're getting two properties with rental income of 4 lakh per month and above, and you're enjoying a golden visa on top of that. So hello my dear investors, welcome back to another video. Firstly, thanks a lot for all the love you shared in the previous one, the kind of feedback I got, and I've definitely learned from all that feedback. I've learned from all the responses I've got on that video. Amazing. Thank you for everything. So in this video, I'm gonna share two projects with you which are pretty hot in the market, and in these two projects, you're not taking any mortgage from the bank. You're putting in around 2.85 crores in Indian rupees, and you're getting two properties with rental income of 4 lakh per month and above, and you're enjoying that rent, and you're enjoying a golden visa on top of that. So in this video, I'm going to show you everything from A to Z about these two projects, from their brochures, their floor plans, the cash flow for these two projects. And I've also incorporated some changes, just say service charges and property management fees as well into the ROI calculation. So I think this video should answer all of your questions, all of your doubts. I've also added some hidden features into this, which I'll show you in the video. So make sure you watch it till the end. All right. So let's start with this video. Okay then, let's start with the Excel first. आपको मैं दिखाता हूँ exactly मैंने क्या changes करे हैं. So firstly मैंने first project तो अपना पुरानी वीडियो में शुभा सॉलिस था, उसको मैंने अब change करके स्काई हिल्स एस्ट्रा कर दिया है. इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा. दूसरी चीज़ है कि सारे टाइम स्टैम्प्स नीचे दे रखे हैं. आपको जो भी पार्ट पे पहुंचना है, फॉर एग्जांपल आपको स्काई हिल्स के बारे में जानना है, आपको लोकेशन के बारे में जानना है, आपको कोई और प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, एंड फाइनली आपको कैश फ्लो ही देखना है सिर्फ कि क्या है, एंड बाकी कंसल्टेशन आपको फ़ोन पे लेनी है, तो मेरा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. यू कैन रीच आउट टू मी एंड वी कैन हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन अबाउट द सेम. So yeah, let's get on with the Excel. So I have taken Sky Hills Astra as the project this time, and I have mix and match so that आपका 2 million threshold reach हो जाए after putting all the fees and everything. And again, as I put in my last video, I have mixed two properties, एक 1.5 bed with pool and एक premium studio. तो सब चीज़ डिटेल में देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्यों लिया है मैंने और इनका फ्लोर प्लान क्या है, everything in detail. So the main thing about this Excel is that I have put in the service charges for both the properties, and I've also put in the property management fees for both the properties. तो इससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपका कितना पैसा लगेगा, कितना कैश फ्लो होगा और कैसे आपका सारी मैथ बैठेगी. ओके. दूसरी चीज़ जो हिडन चीज़ मैं बता रहा था आपको, वो है कि मैंने इसमें करेंसी का फीचर ऐड किया. फॉर एग्जांपल आप यूएस सिटीजन है और आपको यूएसडी में देखना है, तो सीधा इस पर टैप करिए और यहाँ पर यूएसडी क्लिक करिए, तो सारी की सारी कैलकुलेशन सब की सब चेंज हो जाएगी. ये आपका कैश फ्लो का है, ये आपका ऊपर प्रॉपर्टी वैल्यूज़ का है, ठीक है, सब यहाँ पर लिखा हुआ है. फिर ये आपका आता है पूरे साल का कैश फ्लो, सारे जितनी भी ईयर्स का कैश फ्लो टिल योर नेट आउटपुट इज़ ज़ीरो, सब आपको इनपुट मिलेगा. एंड फाइनली पेमेंट प्लान है यहाँ पर, जो भी यूएसडी में दे रखा है, एवरीथिंग इज़ गिवन A to Z इन दिस एक्सेल. दिस इज़ अ गॉड सेंड एक्सेल, एंड ये बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है. ओके, इट्स नॉट अ जोक. So, if you want something to be customized, then we can talk about it, because I think I should start charging for all of this. But anyway, it's a joke. So yeah, सेकेंड थिंग है कि अगर मैं अप्रिसिएशन की बात करूँ तो मैंने अप्रिसिएशन टेबल एक बनाया है, जिसमें आपको दिखेगा कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू अगर 2 मिलियन है, तो वो आफ्टर 2033 जब आपका सारा योर प्रॉपर्टी विल बी पेड ऑफ कम्प्लीटली, उस टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू क्या बनेगी. ओके. सो आप देख सकते हो मैंने अप्रिसिएशन 9% का लिया ऑन एन एवरेज, बिकॉज व्हेन अ प्रॉपर्टी ग्रोज, व्हेन दिस प्लेन लैंड, तो उस टाइम में प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन सबसे हाईएस्ट होती है till the time of handover and 1 or 2 years after that. Then depreciation comes in, building पुरानी होनी शुरू हो जाती है, things start changing. So इसलिए मैंने depreciation लेके ही appreciation कम करी है. And most realtors in Dubai say that appreciation is 10 to 12% every year, but that is in one of the best cases. And me, as a very honest
ब्रोकर आई ऑलवेज वांट कि आप हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलें, क्योंकि उसके ऊपर ही सब अच्छी चीज़ होती है, उसके नीचे कुछ नहीं होने वाला है. सो all of these analysis, all these calculations are taken at the, I think probably at the worst case scenario. So keep in mind इससे better ही होगा. Okay. Then finally I have talked about कि आप अगर suppose आप after you get both the properties handovers and you sell the property, how much money will you actually make? आपने डाला है सिर्फ, अगर मैं INR की बात करूं तो आपने डाला है सिर्फ 2.64 CR, जिसमें आपका 30% पेमेंट फॉर बोथ प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगा, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा. एंड दिस इज़ राइट एट हैंड ओवर, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी प्रॉपर्टी को बिकने के या रीसेल होने के या फ्लिप होने के. तो 2.64 करोड़ आप डालोगे, एंड व्हेन यू सेल दिस प्रॉपर्टी इन 2027-2028 you will have made approximately 2.94 crores. So that's almost 111% return on your investment. And वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे. Okay. So yeah, all the timestamps are given. So skip to whatever part you like. So let's start with the first part, that is explaining the locations and the projects. So firstly, let's go with the first project, which is Sky Hills Astra. All right, I have chosen this project because it is at a developing location, which is called Arjan in all, and specifically called Dubai Science Park. Okay, now why is it called Dubai Science Park? Because यहाँ पर सारे the Dubai government encourages science, technology, all these entrepreneurship activities in this specific area. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे businesses set up हैं for technology and biosciences and sciences in general. एंड यहाँ पर अपार्टमेंट्स के जो प्लॉट्स हैं सिर्फ 80 हैं इस पूरे एरिया में. सो यू कैन से दैट इस एरिया में सप्लाई कम है इन टर्म्स ऑफ जितनी डिमांड बढ़ सकती है इस एरिया में. ओके, सेकेंड थिंग है कि यहाँ पर बहुत सारे पार्क्स आने वाले हैं. अगर आप DDA की वेबसाइट देखेंगे जो मैंने अभी खोल रखी है, दिस इज़ द ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट ऑफ दुबई. इस वेबसाइट पे आप जाके यू कैन सी एग्जैक्टली व्हाट दुबई मैप इज़ लाइक. एंड अगर आपका रियल्टर या जिस एजेंट से आप बात भी करें, अगर आपको बोलता है कि दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी गुड, यहाँ मेट्रो आ रही है, जैसे भी आ रही है, उसकी बात सुनो, बट सोच के सुनो. अपनी खुद का रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है. तो आप ऐसी वेबसाइट पे भी जा सकते हो एंड देख सकते हो कि आपके प्लॉट के पास क्या मेट्रो लाइन आ रही है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अरजान की, जो मैंने DSP कवर किया है. ये DSP इस दुबई साइंस पार्क, एंड आप जैसे देख सकते हो गवर्नमेंट के प्लान्स में सीधा एक मेट्रो लाइन आ रही है, विच इज़ द पिंक लाइन मेट्रो. एंड इस पिंक लाइन मेट्रो के साइड में ही अपना प्लॉट है. ये है स्काई हिल्स का प्लॉट. ये जो आप कर्व प्लॉट देख रहे हैं, पूरा स्काई हिल्स एस्ट्रा का प्लॉट है. एंड इनके प्लान्स के साथ ये बताया गया है कि मेट्रो लाइन विल डायरेक्टली कनेक्ट टू द बिल्डिंग. सो आई फील कि अगर मेट्रो अगर 5 मिनट पास भी अगर आपके घर के पास आ रही है तो अप्रिसिएशन तो होती है. एंड इमेजिन कि अगर आपका घर के साथ में ही मेट्रो लगी हुई है, फिर तो आप अप्रिसिएशन की हद क्रॉस कर सकते हो. लेकिन तब भी आई हैव केप्ट इट एट अ कैप, वो आप देखेंगे एक्सेल में. तो बाकी एरिया की बात करूँ तो यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, किंडरगार्टन एरियाज़ हैं, बहुत सारे पार्क्स हैं. ये एक पार्क है, ये एक पार्क है, ये सामने आपके प्लॉट के एक पार्क है, यहाँ पर एक पार्क है. बहुत ही सुंदर लोकेलिटी बना रखी है. इट्स गोना बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्विजिट लोकेलिटीज़ और एरियाज यू कैन से, in terms of people living there, in terms of quality of life, in terms of the general area. ठीक है, I am personally would say कि this is somewhat close to Emar's Dubai Hills estate because of the greenery there, and this could be something close to that. ठीक है, so as you know already, ये आपका प्लॉट है, यहीं पर ही मेट्रो कनेक्ट होगी. एंड आपके जो दो मेन हाईवेज हैं, विच इज़ अल खाइल रोड, जो ये अल खाइल रोड जा रही है, इससे 3 मिनट्स अवे है आपका प्लॉट यहाँ से. एंड जो शेख मोहम्मद बिन जायद रोड है, वन मोर इम्पॉर्टेंट हाईवे, उससे 1 मिनट की दूरी पे है. यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट वेरी क्लियरली. ठीक है, आई हैव कवर्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज 3 रोड्स इन माई प्रीवियस वीडियो, जो 2.5 CR वाली है. तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको वो देखना है तो आप वो देख सकते हो, या तो मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे. ओके, सो नेक्स्ट वी आर कवरिंग द प्रोजेक्ट इटसेल्फ, कि क्या इसमें ऐसी बात है प्रोजेक्ट में कि इतना अच्छा है ये. सो दिस इज़ बाय द डेवलपर कॉल्ड HRE, which is Hijazi Real Estate. This developer has been in the market since 2003 as a construction company, and they recently have started building their own projects. They have 3 projects till now, which is Sky Hills 1, 2 and 3, out of which 2 are in JVC and 1 is in Arjan.
So this is what the building would look like. आपका मेट्रो स्टेशन यहीं पर ही आ रहा है. Two towers overlooking the whole area of Dubai Science Park. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे पार्क्स होने वाले हैं. जैसा हमने मैप पे भी देखा हुआ है, दुबई साइंस पार्क के मैप पे ये पार्क है, साइड में पार्क है, पॉकेट पार्क्स हैं बहुत सारे. एंड दिस होल एरिया विल बी डेवलप्ड. यहाँ पर कुछ ऑफिसेज आएंगे लेकिन पार्क्स मोस्टली है. सो इट्स लाइक अ वेरी फैमिली फ्रेंडली ग्रीन एरिया फॉर किड्स, फॉर मिडिल एज पीपल एंड फॉर ओल्ड पीपल एज वेल. फिर हम आ जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट में मेट्रो कैसे कनेक्ट होगा. एज आप देख सकते हैं फोटोज़ में, डायरेक्ट कनेक्शन टू द मेट्रो. ऑलराइट, यहाँ पर आपका एक अमेनिटी है विच इज़ कॉल्ड द सैंडी पूल ऑन द बॉटम. यहाँ पर टॉप पे आपका एक पैडल कोर्ट आएगा और यहाँ पर आपका रिलैक्सेशन एंड योगा का एरिया आएगा. वो मैं आपको दिखाता हूँ अमेनिटीज़ में. आप जैसे लोकेशन देख सकते हैं कि ये बहुत सेंट्रली लोकेटेड है. जैसे JVC सेंट्रली लोकेटेड है वैसे ही अर्जान सेंट्रली लोकेटेड है, बिकॉज वो दोनों साइड में आते हैं. एंड अगर आपने खुद की रिसर्च अपनी करी होगी तो JVC हैज़ द बेस्ट रेंटल इनकम राइट नाउ, मोस्ट ट्रांजैक्टेड एरिया राइट नाउ. बट राइट नाउ का मतलब ये नहीं कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा बनेगा. अभी वहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए पैसा बनना मुश्किल है. अगर आप 3 साल पहले उसमें इन्वेस्ट करते तो मैं बोलता कि यार ठीक है, बढ़िया, आपने पैसा कमा लिया, रेंटल इनकम बहुत अच्छी आ रही है, सो नाउ इज़ द राइट टाइम टू फ्लिप द प्रॉपर्टी. सो उसी फैक्टर्स को रखते हुए आई फील अर्जान और दुबई साइंस पार्क इज़ ऑल्सो नियर बाय एंड इट इज़ very close, very well connected to both main highways, which is the Al Khail Road and the Sheikh Mohammed bin Zayed Road, a 2 minute drive to each. So it's well connected without the traffic of JVC, without the supply of JVC, and that is why Arjan is very good. And this is at a distance of 20 to 30 minutes from both the airports, which is the old airport, Dubai Airport, and the new Al Maktoum International Airport, which is the biggest airport in the world. ठीक है. फिर हम आ जाते हैं इस बिल्डिंग के बाकी चीज़ों पे. आपका ये एंट्री लेवल होगा, आपका लॉबी, एंड दिस इज हाउ द मेट्रो विल कनेक्ट टू द प्रोजेक्ट. वेरी ब्यूटीफुल. फिर आ जाते हैं इसके बेस्ट पार्ट पे जो है इसकी अमेनिटीज़. ये आपका जिम. ओके, वेरी वेल मेंटेन्ड, वेरी वेल डिज़ाइंड आई मस्ट से. बहुत अच्छा इन्होंने कलर स्कीम यूज़ किया, एक बेज लाइट कलर्स का. रिकवरी रूम जहाँ पर सॉल्ट बाथ, स्टीम सौना, एवरीथिंग विल बी देयर. फिर आपका दिस इज़ व्हाट योर रूम का जो लॉबीज़ होती हैं वो दिस इज़ व्हाट इट वुड लुक लाइक. फिर किड्स प्ले एरिया आउटडोर एज वेल एज इंडोर. एंड यू गॉट अ प्राइवेट मीटिंग एरिया जहाँ पर अपनी ऑफिस मीटिंग्स कर सकते हो. इट कैन ऑल्सो बी अ क्लब हाउस एंड इट हैज़ अ लाइब्रेरी इन इट. Then this is your lobby where you feel like you're entering a 7-star hotel. I mean, I feel this is still better than that. Very beautiful. फिर आता है आपका एक मेन अमेनिटी जो है बीच सैंडी पूल. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर भी एक फ्लोर लेते हो, यहाँ पर भी एक अपार्टमेंट लेते हो, यू हैव डायरेक्ट व्यू टू दिस. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. मतलब यू वेक अप, यू सिट इन योर balcony and you enjoy the view of a beautiful pool in the front. That's luxury, I must say. फिर आता है आपका एक ओलंपिक लेंथ का पूल जहाँ पर लेंथ इज कम्प्लीटली ओलंपिक साइज्ड बट द विड्थ इज नॉट, टू मेंटेन स्पेस एंड टू गिव द professional swimmers a place to swim. As simple as that. Then you also have a walkway, 50-meter long walkway, 50, 500, I have to confirm that, but it is a barefoot walkway connecting both the towers. And you've also got a jogging track and many more amenities. So all of this can be discussed later and you can see the brochure for yourself. Then one more thing which I must say is that you've got smart homes in all of these apartments. You've got the metro station is going to be named HRE metro station because HRE प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने है. एंड वो HRE का मेट्रो स्टेशन का नाम होते ही इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. एंड ऐसे मैंने बताया है कि ये मेट्रो स्टेशन डायरेक्टली कनेक्ट होगा. आप खुद सोचो यार कि अगर आपके अपार्टमेंट के 5 मिनट दूर पे भी अगर मेट्रो स्टेशन आ रहा होता है तो आपकी अप्रिसिएशन बढ़ती है, राइट. तो अगर आपकी बिल्डिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है मेट्रो तो खुद सोचो यार कितनी अप्रिसिएशन बढ़ेगी. तो इस प्रोजेक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इस मार्केट में. थिंकिंग अबाउट कितने प्लॉट्स हैं इस एरिया में और मेट्रो कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है. इस पूरे एरिया में स्कूल्स भी हैं, किंडरगार्टन्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं आसपास के एरियाज़ में, एंड एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस कम्युनिटी. वेरी फैमिली फ्रेंडली एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग एरियाज इन द कमिंग टाइम्स. तो जैसे 3 साल पहले JVC था वैसे ही अर्जान could be a good area for investments, and I think it is one of the best considering the metro connectivity. Also,
as I said, यहाँ पर paddle court आता है, and finally imagine waking up to this view. You know, you're doing meditation and you open your eyes and you see the sunrise, sunset happening right in front of your eyes. Beautiful. Fair. Another highlight of this property is that it is fully furnished. This is what your interiors would look like. And the benefit of having a fully furnished property is that it's easy for tenants, it's easy for you as a landlord to give it to tenants, it's easy for you as an investor to flip the property, because most people who want to move into a property don't want the hassle of furnishing it, and so do you don't want the hassle. So it's easy for flipping because लोग आएंगे fully furnished property देखेंगे and they'll immediately put the money because mortgage उनको मिल जाएगा अच्छे amount पे. So this is what your apartment would look like. Everything you see here you will be getting in this apartment. TV ka I'm not sure, but TV though you can manage on your own. I'll have to confirm about this, but everything else is exactly as it is. Alright, जैसे आप देख सकते हैं, आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, ब्रोशर मैं आपको दे ही दूंगा. So this is pretty decent. ये आपका किचन का एरिया होगा. This is what your wood work would look like. See-through cabinets with lights inside. When you open the cabinet, the lights will light up. Beautiful. Always. Then you've got a washer dryer ka alag separate room in most of the apartments, so that is a good way to save space. And finally we come to the floor plans of this property. So इस ब्रोशर में सारे फ्लोर प्लान्स दे रखे हैं. स्टूडियो प्रीमियम, 1 bedroom, 1.5 to 2.5 जितने भी यूनिट्स लेआउट्स हैं सब दे रखे हैं. So when you see the brochure you can find out and see what unit you really like. But our unit, the one we're focusing on, would be a premium studio because the payment plan is better than a normal studio, and I'll explain why. So let's just look at the floor plan first. तो ये है आपका 545 square foot का studio, which is called a premium studio. And ऐसे क्यों ये कहा जाता है? Because as soon as you enter, you've got a very long kitchen slab. यहाँ पर आपका bathroom आ जाता है, and this is your wardrobe. Side में एक living room है, and then you have a space for an office as well. मतलब office तो नहीं कह सकते, but then you have a space as a study table or to have your meetings, and there's a big partition in the middle कि आपका एक bedroom आ जाए, and you're looking at the sunrise or the sunset or whatever view you choose when you wake up and when you sleep at night. So it's very beautiful. It's not like traditional studios जिसमें आप दीवार को देख के सोते हो साइड में, पता नहीं बालकनी कैसी है. तो ये बहुत ही अच्छा यूनिट है, and this is what I would like for my investors as well. तो आप देरी मत करिए. पुराने जितने प्रोजेक्ट्स मैंने अपने इन्वेस्टर्स को भेजे भी थे, आई मीन ऑब्वियसली टाइम लगता है ऐसी चीज़ देखने में, लेकिन ट्रस्ट दिखाना भी अच्छी चीज़ है ना. अब एक प्रोजेक्ट आया था कोव बोलेवार्ड, बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट, 1.28 million का 2 bedroom 1200 square foot, which I mean I sent it to a lot of people, but I think only a few gave the EOI and got the selected unit. So this also is a very prized project. तो आप मिस मत करिए चांस ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का. एंड ट्रस्ट मी, इसका प्रोसेस बहुत सिंपल होता है. एक EOI ही देना होता है सिर्फ, विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. इस EOI इज़ अ टोकन अमाउंट ऑफ maybe 50,000 or 80,000 depending on the product value, and this is fully refundable. इसका बस यही कंसर्न है कि आप वो EOI दे रहे हो और आप एक लाइन में अपनी जगह बुक कर चुके हो एंड लिमिटेड स्टॉक है सामने. अब वो लाइन जितनी बड़ी होती जाएगी, जितना लेट होता जाएगा, उतना स्टॉक ख़त्म होता जाएगा. तो उस हिसाब से आप प्रोएक्टिव रहिए. अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो EOI डाल दीजिए, डोंट रिग्रेट इट. अगर आपको यूनिट नहीं भी मिलता है तो पैसा तो वापस आ ही जाएगा, वी कैन पुट इट समवेयर एल्स. बट अगर आपको अपने पसंद का यूनिट मिल जाता है, सो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, पैसा बनेगा. ऑलराइट, so this is basic idea of what Sky Hills is. Now let me come to its payment plan. So its payment plan is very simple. Its premium studio का payment plan would be 50-50 with a post handover of around 4 years. Very good for this project. And जो तो दोनों projects मैंने use करे हैं, दोनों में 4 years का post handover है, so that you're not putting any money, you're not taking any money from the bank, no interest rates, no liabilities, nothing at all. You're taking directly from the developer at zero interest. Good payment plan. So firstly आपका जाएगा 14%, and 4% is the DLD fees and 10% is your down payment. तो ये 14% starting में जाएगा आपका, जो बनता है 29 lakhs, which is in March, and then in April you'll pay the next 10%,
and in April you'll pay the next 10%, which is again 21 lakhs. Your total value for this project is 2 crores 19 lakhs, and इसी पेमेंट प्लान के साथ आप चलते रहिएगा आराम आराम से, अच्छे टाइम गैप के साथ आपका पेमेंट इंस्टॉलमेंट जा रहा है. एंड दिस इज व्हेन यू हैव हैंड ओवर वेयर यू हैव टू पुट 15%. Most people flip it at either this point where you're paying the last 3%, project's going to be ready. So at this point, you can put the property in the market and make a good profit out of it by flipping. Or you can go for this point where you've paid the 15% and लोग आके आपका प्रॉपर्टी देख सकते हैं and वो easily mortgage भी करा सकते हैं. सो दोनों पॉइंट पे बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाला है टू फ्लिप द प्रॉपर्टी. बाकी अगर आपको ये रखना है अपने रेंटल इनकम के लिए या अपने गोल्डन वीज़ा के पर्पस के लिए, तो आप पेमेंट प्लान के साथ जा सकते हैं. एंड ये आपका पोस्ट हैंड ओवर रहेगा ऑफ 2.5% एवरी 3 months, सो दैट्स इवन लेस दैन 1% एवरी मंथ. दैट्स अ वेरी गुड पेमेंट प्लान, आई मस्ट से. ओके, सो ये आपका पेमेंट प्लान हो गया है. इसकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताई है, ये आएगी आपकी 2 crores 11 lakhs की, and that is it for this property. So Sky Hills तो मैंने आपको बता दिया है. I think everything I've said about Sky Hills. कुछ और भी होगा तो I'll put it in the messages if you send me if you want to inquire about this project. So let's come to our next project, which is Peace Lagoons, and I've already covered it in my last video. If you have any doubts about that, if you want to see it again, then you can go to my previous video and just skip to that part. Timestamps are mentioned below. You skip to that part, see Peace Lagoons, and we can get on with it. Okay. Again, it's a very beautiful project. इसमें लगून आएगा आपका पूरे बेस पोडियम पे, and every apartment has a pool in it. ठीक है, I'm not going to cover everything in detail again, but I'm just going to show you what unit I'm going to select this time. लास्ट टाइम मैंने स्टूडियो पूल देखा था बट वो बिक चुका है, अब वो उस प्राइस पे कुछ बचा नहीं है. सो लेट्स गेट ऑन विद अ 1.5 bedroom. सो ये 1 bedroom ही है, बट ये एक स्टडी रूम दे देते साथ में, स्टडी या स्टोर रूम एज अ बेनिफिट, एंड साथ में एक बड़ा सा पूल. ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर अपार्टमेंट वुड लुक लाइक. आपका फ्लोर प्लान ऐसा है. दिस इज योर डाइनिंग टेबल इन द मिडल. ये आपको साथ में मिलेगी, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा मिलेगा कि नहीं, बट वील मैनेज. आई मीन आई हैव गुड कॉन्टैक्ट्स एंड रेफरेंसेस, सो वी कैन discuss about this. As soon as you enter, this is your dining table, your L-shaped kitchen, very long. Your appliances will already be given to you and your kitchen will be fully fitted. आपका अंदर का decor, your wall paneling, everything will be there. सिर्फ आपको furniture लेके आना है, जो बनेगा आपका sofa and your bed. Rest everything will be there. Okay. ये आपका pool आ जाता है, decent size, directly overlooking the bedroom, and you have a store connecting directly here and an attached bathroom to the bedroom en suite, and you've got a powder room for the guests. All right, I think this is enough for Peace Lagoons. Let's come to its payment plan and its price. So we've selected a unit which is approximately 1.1 million, and I'm sure by the time this video gets a little up in views, ye pick chuka hoga. We can look for something close to this range, maybe 1.1.5 or 1.2. तो उस रेंज में हमें मिल जाएगा. वील मिक्स एंड मैच, बट यू हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड यू हैव टू एक्ट फास्ट, बिकॉज जितना डिले करोगे उतने अच्छे यूनिट्स निकल जाएंगे. एंड मैं आपको पुश नहीं कर रहा हूँ, बट आई फील कि इफ़ यू आर पुटिंग सो मच मनी इन टू अ प्रोडक्ट और अ प्रोजेक्ट, डेफिनेटली रिसर्च करनी चाहिए खुद की, बट ऐसी चीज़ बार बार नहीं आती मार्केट में, ऐसी वैल्यू पे नहीं आती है. एंड आई फील कि यार वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए अगर आप पैसा डाल रहे हो. मैं ऐसे नहीं बोलूँगा यार कोई भी प्रोजेक्ट देखे उसमें पैसा डाल दो. तभी मैंने बहुत चुन चुन के प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया है ताकि आप टेंशन फ्री रहो एंड सारा टेंशन मेरे पे छोड़ दो. ओके, सो दिस इज 1.1 मिलियन. इसका पेमेंट प्लान इज 4456. ये रेडी होगा Q2 2027 में, एंड इसका प्राइस होगा 2.58 crores. 807 स्क्वायर फुट का 1.5 bedroom है, विच इज़ प्रीटी डिसेंट इन साइज. एंड इसका पेमेंट प्लान है बहुत ही सिंपल. 20% प्लस 4% आपको देना है ऑन द टाइम ऑफ बुकिंग. यू कैन बुक विद जस्ट 1% और 2% ताकि आपका यूनिट होल्ड हो जाए. इसमें भी EOI सिस्टम आप दे सकते हो, बट देन इट्स जस्ट 1% फॉर एवरी मंथ फॉर 80 months. सो इट्स 80% फॉर 80 months, जिसमें 44% आपका टोटल कवर हो जाएगा बिफोर हैंड ओवर, एंड हैंड ओवर होते ही आपका बाकी 56% कवर होगा. एंड दिस विल ऑल बी पोस्ट हैंड ओवर, सो इट्स प्रीटी गुड दैट वेज कि आपका रेंटल इनकम भरते रहेगा इसको. सो इसकी लोकेशन तो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दी थी, बट जस्ट यू नो टू हेल्प यू गाइज अंडरस्टैंड, आई विल शो यू व्हाई दिस लोकेशन इज़ बेनिफिशियल.
सो दिस इज़ दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स, जिसे कहते हैं वादी अल सफ़ा 5। अब इस एरिया का बेनिफिट ये है कि ये डेवलपिंग एरिया है। इसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, तीन चीज़ें जो फैमिली को चाहिए होती है वो ऑलरेडी है बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। यहाँ पर हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट्स, ग्रोसरी स्टोर्स, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हियर। बट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स थोड़े कम हैं यहाँ पर। बहुत पुरानी बिल्डिंग्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, बट न्यू डेवलपमेंट्स नहीं हैं। So that is why this can be a good area for an investor to grow his money in and to get good rentals. Now, why good rentals? Because right next to this, ये है academic city. Now, academic city will be a global hub of students, colleges, schools, everything related to academics by 2030, 2040. And जैसे आपने US, UK, Canada सबका हाल देखा है फॉरेन कंट्रीज़ का, आप अपने बच्चे को 24 आवर्स, 25 आवर्स की फ़्लाइट से इतना दूर भेजते हो जस्ट टू हैव सम एजुकेशन, एंड जहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस नहीं है, जहाँ पर मारामारी हो रही है जॉब्स की। वो मारामारी दुबई में भी हो रही है, लेकिन एटलीस्ट आपको एजुकेशन मिल रही है, एंड एटलीस्ट आप सिर्फ 3 घंटे दूर हो अपने बच्चे से। सो थिंकिंग, पुटिंग दैट इनटू पर्सपेक्टिव इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड वही चीज़ सोच के मैंने ये कंक्लूड किया है, डिसाइफर किया है या डिड्यूस किया है कि ये एरिया बहुत बूम करने वाला है इन द अपकमिंग टाइम। सारे बच्चों को अकोमोडेशन चाहिए होगी जो यहाँ पर नहीं है। मैं भी बिट्स पिलानी में पढ़ रहा हूँ, इसी यहाँ पर एक कैंपस है बिट्स पिलानी का, एंड वहाँ पर मुझे हॉस्टल में रहना पड़ रहा है सैडली, बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड अ गुड अपार्टमेंट नियर बाय। तो वही अपार्टमेंट्स को केटर करने के लिए ये एरिया आ रहा है दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में। बहुत सारे अपार्टमेंट्स, बहुत सारे न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं। एंड अगर आपके अपार्टमेंट में अगर पूल है और ग्राउंड में लगून है, तो आई थिंक बच्चे थोड़ा प्रीमियम दे देंगे, और अगर बच्चे भी ना दे पाए तो फैमिलीज तो देंगी। सो सेकेंड थिंग ये है कि ये ग्लोबल विलेज एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल एंड ING वर्ल्ड्स ऑफ एडवेंचर, इन दोनों के बहुत पास है। सो अगर एयरबीएनबी के टाइम पे भी अगर इसको आप लगाते हो, एंड पीक सीजन ऑफ ग्लोबल विलेज पे एयरबीएनबी पे लगाते हो, तब भी आपका बहुत अच्छा रेंटल आ सकता है, बहुत अच्छे चांसेस है। फिर यहाँ पर साइड में आपका एक अलबतुर पोलो रिजॉर्ट है, एंड यहाँ पर बहुत सारी विला कम्युनिटीज़ हैं। तो आप कह सकते हो कि दुबई लैंड में सिर्फ एक यही है जो रेजिडेंशियल एरिया है। ओके, इसके साथ में एक सिलिकन ओएसिस है, दुबई सिलिकन ओएसिस, बट यहाँ पर मोस्ट बिल्डिंग्स आर लीज होल्ड, विच यू एज अ फॉरेन एक्सपैट कैन नॉट buy a property here, and you should not buy a leasehold property. Lot of people might, a lot of agents might tell you ki okay, there's this I'm not going to name it, but there's this development in DIP, which is leasehold, and नहीं freehold हो जाएगा या जैसे भी हो जाएगा, but don't go for it. For people who know what I'm talking about, stay away from it. If you need any more suggestions about it, just let me know. But for people who don't know, never go for a leasehold property, because leasehold is 99 years. You cannot transfer it to your next of kin, and उसकी resale value भी नहीं होगी in the future. Only locals can buy it, and locals are only 15 to 20% of the whole Dubai market. So getting your property and giving it to a local is very less. So just don't go into it at all. ठीक है? So Silicon Oasis का यही है कि rents are expensive here, rents are high, properties are expensive here and all leasehold, so you can't own it. So the only place you can own properties in this area is DLRC and a few new projects in Dubai Silicon Oasis. That's it. So that is a very brief idea of why Dubai Land Residence Complex will grow in the future. There's another thing that is that यहाँ पर एक metro line भी आ रही है, blue line, जो announce हो चुकी है already. So इसी DDA की वेबसाइट में अगर मैं जाके देखूँ, so this is your Dubai Land Residence Complex, and इसी की साइड में just 5 to 10 minute drive एक मेट्रो लाइन आ रही है, ब्लू लाइन, एंड यहीं से वो क्रॉस करेगी, कनेक्टिंग योर एकेडमिक सिटी टू दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स। एंड अगर आप सोच रहे हो कि अगर मेरा प्लॉट यहाँ पर है और मेट्रो इतनी दूर है तो दैट इज़ एन इशू फॉर मी, नो, बिकॉज बस स्टॉप्स बहुत सारे हैं दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में, एंड अभी भी इस्टेब्लिश्ड है। सो दैट मीन्स कि यू जस्ट अ 5 minute ड्राइव फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन, 5 minute बस राइड फ्रॉम अ मेट्रो स्टेशन, सो दैट्स प्रीटी गुड, आई मस्ट से। ओके, सो दैट इज़ ब्रीफ आइडिया। अगर आपको और इन डेप्थ में जाना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आई थिंक मैंने और काफ़ी चीज़ें बता रखी है दुबई लैंड के बारे में। सो फाइनली आते हैं सबसे मेन चीज़ पे कि यार आप प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे पैसा बना रहे हो, कितना पैसा बन रहा है। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं दोनों प्रॉपर्टीज़ का, दोनों प्रोजेक्ट्स का एक समड अप वर्जन,
तो ये है कि जो आपका प्रीमियम स्टूडियो है अर्जान का, उसका रेंट अभी अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है 72,000, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8% ऑफ टूडेज मार्केट। एंड जो भी आप रेडी प्रॉपर्टी भी लोगे वो इसी रेंट पे आपको मिलेगी। तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी अप्रिसिएशन होगी इतनी ज़्यादा इन रेडी प्रॉपर्टी। देर आर मोर एक्स्ट्रा एडेड कॉस्ट टू इट, तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द रेंटल्स जो अभी चल रहे हैं। फॉर अ 1 bedroom इट्स अराउंड 77,000, एंड बाय द टाइम बोथ द प्रॉपर्टीज गेट हैंडेड ओवर, your property should at least give you 94,000 dirhams, which is 22 lakhs in rental for Arjan and 23 lakhs in rental for DLRC. And now I have incorporated service charges into the property, जो आपका होता है 15 AED approximately per square feet। तो अगर हमने 559 रखा है तो उसमें अराउंड 100 स्क्वायर फीट की बालकनी है, तो उसी के हिसाब से मैंने बालकनी का एरिया कम करके जितना इंटरनल एरिया है ना उसी पे सर्विस चार्ज ऐड कराया है, क्योंकि बालकनी का सर्विस चार्ज 25% चार्ज होता है। तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया कि यार आपका सर्विस चार्ज विल बी 1.6 lakhs। एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जो फैम प्रॉपर्टीज़ है उनकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में 5% की फीस होती है, अप्रॉक्सीमेटली 5,000 dirhams की। तो उस हिसाब से मैंने दोनों का एक रेट निकाला है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का। तो ये सब कॉस्ट मिला के अगर आप देखो कि आपके हाथ में कितना आ रहा है, तो वो है 19 lakhs for one and 19 lakhs for another. So that's almost 40 lakhs in your hand if you've paid out all the properties and everything is done. So आप घर पे बैठ रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी खुद मैनेज हो रही है, आपके सर्विस चार्ज खुद निकल रहा है, और उसके बाद आपके हाथ में 40 lakhs आ रहे हैं, and you're also getting a golden visa. That way it's a very good investment plan for you कि अगर आपको रिटायर होना है जल्दी। तो हम आ जाते हैं कैश फ्लो पे, और उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि यार आपका डाउन पेमेंट पे कितना परसेंटेज जाएगा टू गेट अ गोल्डन वीज़ा, बिकॉज फॉर पीपल हु आर जस्ट लुकिंग टू गेट दैट दिस वैल्यू इज़ इंपॉर्टेंट। सो हमारा स्टार्ट होता है 24% फॉर बोथ प्रॉपर्टीज़, एंड इसके बाद ही गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो इन अ मैटर ऑफ 45 to 60 days, बिकॉज देयर आर 2 documents विच कम आफ्टर 24%। पहला होता है SPA एंड सेकेंड होता है उकूद, विच इज़ द प्री टाइटल डीड फॉर योर प्रॉपर्टी, एंड बेस्ड ऑन दैट प्री टाइटल डीड यू कैन गेट द गोल्डन वीज़ा। सो वो टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 करोड़ की, 1 करोड़ 12 lakhs की। एंड ये जो वैल्यू है ये आपको अपफ्रंट देनी है, तो आप अज्यूम करके रखिए कि इतना पैसा आपका जाएगा स्टार्टिंग में। फिर पूरे 2025 में जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स मिला के आपका पैसा टोटल जाएगा 1 करोड़ 44 lakhs। एंड ऐसे ही करते 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 मैंने एक पूरा एनालिसिस या कैश फ्लो बना रखा है कि आपका कितना हर एक प्रॉपर्टी का कितना पैसा जाएगा। टोटल फॉर 2026 इज़ 43 lakhs एंड टोटल टिल 2026 इज़ 1 करोड़ 88 lakhs। तो ऐसे करके फॉर डिफरेंट ईयर्स टिल योर प्रॉपर्टीज आर पेड फॉर कम्प्लीटली, ओके, थ्रू योर रेंटल्स एज वेल। एंड मैंने ये भी कैलकुलेट किया है कि यार आपका अगर रेंटल आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, कितना परसेंटेज से बढ़ेगा। मोस्ट रियल्टर्स इन दुबई से कि यार 10 to 12% रेंटल बढ़ता है, लेकिन तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार 5% आप मिनिमम बढ़ा के चलो, 5% से कम नहीं बढ़ता है और 5% की ज़्यादा बढ़ सकता है, तो हम वर्स्ट के सिनारियो ले रहे हैं। सो अगर हमारा रेंट 19 lakhs आ रहा है स्टार्टिंग में, ये जो है ये हाफ ईयर के बाद है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ अभी। बट अगर आपका रेंट 19 lakhs का आ रहा है तो इसको आप 5% बढ़ाओ तो ये 20 lakhs बन जाता है। फिर अगर वो आ रहा है तो 21 lakhs बन जाता है। ऐसे करते करते आफ्टर योर प्रॉपर्टीज आर पेड फॉर, बाय द एंड यू विल बी गेटिंग अ रेंटल इनकम ऑफ 51 lakhs पर ईयर, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। ठीक है, एंड इसी को मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पर इन अ कंडेंस्ड फॉर्म, एंड इसमें हम देख सकते हैं कि आपका ईयरली कैश फ्लो कितना हो रहा है। दिस इज 2025, 26, 27, एंड दिस इज वेयर योर रेंटल इनकम स्टार्ट्स, जो बन जाती है 40 lakhs। एंड आफ्टर दिस योर टोटल अमाउंट टू बी पेड टू दुबई वुड बी 12 lakhs। एंड ऐसे करते 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 बाय ईयर 2032 यू विल बी यू विल बी नेट पॉजिटिव, आपके हाथ में 29 lakhs आएगा, ओके। एंड नेक्स्ट ईयर व्हेन द प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली फ्री देन इट इज 51 lakhs। दैट मीन्स कि आपका टोटल अमाउंट जो दुबई में गया है वो है 2 करोड़ 85 lakhs, एंड दिस इज विदाउट एनी मॉर्गेज। अगर आप मॉर्गेज लेते हो तो ये अमाउंट काफ़ी कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से वी कैन डिस्कस कैसे करना है। एंड दिस इज़ जस्ट अ बेसिक आइडिया कि आपको कितना चाहिए टू इन्वेस्ट इन दुबई। अगर आप मॉर्गेज भी लेते हो तो हमारे पास 30-70 के प्लान्स हैं, 40-60 के प्लान्स हैं, एंड उस हिसाब से सिर्फ आपको 40% देना है ऑफ 2 million या 4.7 CR। तो वो सब कैलकुलेशन हम कर सकते हैं ऑन अ 1-on-1। बाकी अब मैं बात करूँ अप्रिसिएशन की,
तो ऐसे मैंने बताया 9% अप्रिसिएशन पर ईयर लेके चल रहा हूँ मैं एज अ वेरी सेफ फिगर. एंड फ्रॉम 2 million और 4.7 crores you have got a value of 3.8 million or 9.1 crores by the time the property is free. एंड आप देखो कि आपने कितना पैसा बनाया है. यू हैव मेड 4.4 करोड़ ऑन अप्रिसिएशन अलोन. तो और लोग बोलते हैं कि यार रेडी प्रॉपर्टी लेंगे तो रेंटल इनकम इमीडिएटली शुरू हो जाएगा. बट मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो जो आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है वो आपके रेंटल इनकम से ज़्यादा है. ज़रूर आपके हाथ में पैसा नहीं आ रहा, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी तो मिला के दे रही है ना. एंड ये 9% अप्रिसिएशन में ना आप सर्विस चार्ज दे रहे हो, ना आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस दे रहे हो. तो 9 का 9 क्या 12% तक भी अप्रिसिएशन लोगों को मिलती है इन सम ऑफ देयर अपार्टमेंट्स. सो दैट वेज ऑल ऑफलाइन इज ऑलवेज बेटर देन अ रेडी प्रॉपर्टी. अब अगर आप खुद मूव इन करना चाहते हो दैन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो ऑफ प्लान ही देखो, बिकॉज इन दी एंड व्हेन द प्रॉपर्टी गेट्स हैंडेड ओवर you always have a better bargaining power as a landlord and as a investor to flip the property. So you've made 4.4 CR on your property just by appreciation, just by getting an off-plan one. And if you consider rental income which you have earned till now, after cutting all installments and everything, अगर positive rental income को ही हम ध्यान में रखें तो आपकी 80 lakhs तो बन गया है उससे in the span of 2 years almost. तो अगर हम टोटल मिला के देखें तो इट्स 5.21 करोड़ विच यू मेड जस्ट बाय ओनिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ जितना भी वैल्यू मैंने आपको बताई है 2 million और 4.7 CR. एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यू हैव ओनली पुट इन 2 crores and 85 lakhs इन योर प्रॉपर्टी. ऑल राइट, अगर आप देखो 2 crores 85 lakhs आपने प्रॉपर्टी में डाला है और आपने टोटल मिला के अगर आप प्रॉपर्टी को बेचते भी हो तब आपने 5.2 crores बना लिया है. सो इट्स अ मैसिव रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. 2 crores 85 lakhs डालने के बाद आपका 5 crores 21 lakhs आ रहा है इफ यू सेल ऑल द प्रॉपर्टी. आई मीन ज़रूर इसमें टाइम लग रहा है. दिस टेक्स एटलीस्ट 7 to 8 years or even 9 years for that to happen. But try to understand that you're making a very good investment here. एंड 9 साल में तो आपका गोल्डन वीज़ा भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा. एंड बाय दैट टाइम इवन इफ यू फ्लिप वन प्रॉपर्टी you can buy another, put the down payment for another, shift the golden visa to that one, and then flip the property for a very good profit. So this should help you understand कि कितना पैसा बनेगा आपका इस प्रॉपर्टी में, इन दोनों प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके. एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट दिस होल इन्वेस्टमेंट प्लान. इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी पसंदीदा करेंसी में भी चेंज कर सकते हो. मेरे काफ़ी इन्वेस्टर्स ने मुझे बोला था कि यार मेरे को USD में चाहिए, मेरे को CAD में चाहिए, मेरे को ब्रिटिश पाउंड में चाहिए. सो आई हैव जस्ट मेड इट ईजी फॉर यू कैन डू इट योर सेल्फ. बाकी आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो. कुछ भी डाउट्स या क्वेश्चंस हो तो रीच आउट टू मी ऑन माई WhatsApp और माई Instagram. एंड यू कैन टेक योर टाइम टू इन्वेस्ट. बट इफ़ आई सेड कि यार ये चीज़ अच्छी है लेने वाली तो उसको ध्यान से सोचो, अपनी खुद की रिसर्च करो. And what I'll do is I'll also show you some websites which are the top websites for properties and for your own research if you want, or if you're looking for a property in Dubai and you're in connection and you're connected to another agent. Okay, now how do you know that agent is telling you the truth or is honest to you or is faithful to your words and is giving you right investment? वो कैसे? There are 3 websites. एक है Property Finder जहाँ पर आप सारे you can see properties to buy, to rent, new projects. You can see what all properties are there, off plan, ready, जो भी है you can see here. फिर एक आती है साइट buyouth.com जहाँ पर आपको सारे एरियाज़ के बारे में भी पता चलता है कि क्या एरियाज़ है, कैसे एरियाज़ हैं, दुबई में अपार्टमेंट्स हैं सेल के लिए, क्या प्राइसेस चल रहे हैं, एवरीथिंग यू कैन सी हियर. फिर आता है अपना एक दुबिज़ल पे भी सारा काम होता है with regards to buying and selling properties. इसमें सब कुछ आप buy and sell कर सकते हो, लेकिन I am dealing in properties, so I think that is what my domain is. फिर आता है DXB Interact, which is a very hidden website. This website is a very good, very life changer for investors because everything is available here, from sale to rent का analysis, what transactions were there, performance क्या रही है पूरे areas की, सप्लाई कितनी है कुछ एरियाज में, टॉप एरियाज क्या है, प्राइस इंडेक्स क्या है. एंड यू कैन सी कि आपका सपोज आपको किसी एजेंट ने बोला कि यार ये यूनिट पिछले साल इतने में बिका, तो आप उससे पूछो कि यार ये प्रोजेक्ट कौन सा है और क्या एरिया में है. एंड सपोज वो बोलता है कि यार
JVC में कोई प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल वेस्टवुड में बोल देता हूँ, वेस्टवुड ग्रैंड बाय इम्तियाज़, अगर वो आपको बोलता है कि यार ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आप खुद जाके देख सकते हो कि कितना अच्छा प्रोजेक्ट है. तो व्हाट यू डू इज़ यू पुट द फिल्टर्स, यू पुट द 1 बेडरूम स्टूडियो, जैसा भी आपको डालना है, वो करने के बाद यू कैन सी कि लोगों ने कितना पैसा बनाया है इस प्रोजेक्ट में. सो इन द पास्ट 3 years फॉर अ 1 bedroom दे हैव मेड 29, 31%, 26%, 24% रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. एंड उसका क्या मतलब है कि दे वर वाइज इन्वेस्टर्स, दे इन्वेस्टेड राइट इन द बिगिनिंग व्हेन द प्रॉपर्टी वाज एट ऑफ प्लान, sold by the developer for 913,000 dirhams, and in 2 years they made profit of around around 200,000 dirhams. That's it. I mean, that's how flipping works. So when someone tells you, an agent tells you, okay, go for this in the pre-launch. Pre-launch is the best time to buy something. Then comes launch when the prices increase by at least 5%, and then is the remaining lots. Pre-launch में सारे investors सबसे best units निकाल लेते हैं, and जो बचता है, that's just the waste, I must say, because getting a unit on the first floor with a building in front is not beneficial. Don't never go for it. अगर आपको खुद के अपार्टमेंट में वरांडा या बैल्कनी चाहिए बहुत अच्छी, एंड आप खुद रहना चाहते हो, तो वो अलग बात है. बट अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, देन गो फॉर हायर फ्लोर्स, गुड व्यूज, and always put your money in the pre-launch. Put an EOI because it is refundable. There's no risk at all. Don't worry about that. आप बस EOI डालो और अपने एजेंट की या तो मेरी बात सुनो. All right. एंड द लास्ट वेबसाइट जो मैं बताना आपको चाहता हूँ वो है प्रॉप सर्च. तो अगर आपको कोई आपका एजेंट बताता है कि यार एग्जांपल दुरार इज़ अ बिल्डिंग जो बहुत अच्छी है, एंड आपको इसमें अच्छा रेंट मिल जाएगा, तो हाउ डू यू वेट इट, बिकॉज कहीं पर लिखा तो है नहीं दुरार अच्छी है कि नहीं है. तो आप खुद ये प्रॉपर्टी खोलो, आपको अल दुरार मिल जाएगा प्रॉप सर्च पे. फिर आप देखो कि यार बिल्डिंग किसने बनाई है, ओके, किसका कौन कॉन्ट्रैक्टर था, क्या था, कब प्रॉपर्टी रेडी हुई है, सारी डिटेल्स सब कुछ प्रॉप सर्च में आ जाता है फॉर दुबई प्रॉपर्टीज़. फॉर एग्जांपल मैं बुर्ज खलीफा की बात करूँ, भाई बुर्ज खलीफा किसने बनाया है, तो बुर्ज खलीफा का एवरीथिंग इज A to Z इज गिवन हियर. डेवलपर कौन था, इमार. टाइमलाइन कब शुरू हुई, 2004 में, एंड कंप्लीट बाय 2012. Architect is this, contractor is this. So all of these facts are given, all of these areas are given. So these are a few websites which you should definitely look at before agreeing to your agent. And I think I've covered everything in this video. Baki kuch bhi doubts ho, you can just scroll back to the timestamps. You can pause videos wherever you feel necessary. You can get the Excel also. And if you have any questions, please reach out to me. I am available on WhatsApp and Instagram, and also on call if you can call me. So I think that is it for this video. I hope you liked it. Again, इसमें बहुत मेहनत लगती है, so would love if I could get some more subscribers and you could share this video as much as you can. Thanks for tuning in. Thanks for sticking till the end. I hope this video will give you the knowledge which you desire. All right. Thank you so much.